everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. I hope you are all practicing well for your mains answer writing. I hope you have already read the model answers given to you. So welcome to this session and now we are going to discuss some important questions in science and technology. So let's get started and have a very first question over here. The first question that we are going to discuss today is, what is cybercrime? What types of cyber security threats are being witnessed by the world today? Explain India's attempts to tackle these issues. Now we are living in a digital era और हम न्यूज़पेपर्स उठा के रोज ये देख सकते हैं साइबर क्राइम की न्यूज़. द न्यूज़पेपर इज फुल ऑफ साइबर अटैक्स, साइबर क्राइम्स, इन सब के बारे में बात होती है. अगर हम 10 साल पीछे जाके देखें ना, डेकेड अगो देयर वर नो सच टर्म्स सच एज साइबर क्राइम्स, साइबर अटैक्स, वायरसेस, वर्म्स. बट नाउ लिविंग इन दिस एरा, these terms have become very much important for us to understand. So what is basically cyber crime? Cyber crime को अगर हम define करना चाहें in a single line, computer related crime. So basically those malicious activities, ऐसे कुछ काम which involve the wrong intention of a person, and it involves the digital devices, be it your mobile phones, laptops, your networks and computers. So a malicious work, a malicious intention which deliberately, जहाँ पर एक कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन डेलिबरेटली अटेम्प्ट करती है टू हैक और टू ब्रीच समबडीज एल्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट. सो साइबर क्राइम इज बेसिकली कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम. सो अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में हम सिंपल लैंग्वेज में साइबर क्राइम को डिफाइन करेंगे. दैट इज कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम where an organization or an individual has a malicious intent or a bad intent to breach anybody's else's information system, right. It may imply the use of mobile phones, computers, servers, networks and all, right. इतनी सी इंट्रोडक्शन देने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. व्हाट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स आर बीइंग विटनेस्ड बाय द वर्ल्ड टुडे. सो बेसिकली यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट और यू कैन जॉट डाउन एट पॉइंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स. सो द फर्स्ट वन इज malware. First है malware. The word malware itself comes from malicious software. So this type, any software that has a malicious intent, bad intent है, it can be a spyware also, it can be ransomware, it might include viruses or some worms. So basically what does a malware do? Malware or a malicious software, it disrupt the system. System को खराब करेगा, उसके components के साथ छेड़छाड़ करेगा and it might render the system or the computer inoperable, right. So malicious software is malware. It can include certain spywares, right. So here we can quote the example of Pegasus. Spywares के बारे में बात कर सकते हैं हम. We can talk about the cyber attacks on different power sectors of India also. जो मुंबई अटैक हुआ था पावर सेक्टर पर, spywares हो सकते हैं. They can be ransomwares or they can be viruses or worms. So these malicious softwares get incorporated into the system without being detected by the user, right. And once they are incorporated, they try to disrupt the functioning of the computer and makes the system inoperable, right. So malicious software or malware, the first type of cyber attack. Then we have phishing. P-H-I-S-H-I-N-G, phishing. So phishing basically is, all of you might have come across such sort of mails which are fake mails from fake websites or from fake places. जैसे some mails tend to come from a bank which actually exists, but these emails are fake, right. For example, from PayPal links or from certain banks or from certain websites, there are certain mails which try to get
the information. So ऐसी emails क्या चाहती हैं? They try to get the information out of you. Thus by opening the link or by going to that email, responding to that email, you generally tend to give your passwords or another important information. So once the hacker gets this information can be used in different manners. It can hamper the financial aspect of your life, या कोई physically या emotionally जो है, that also hampers. So these emails tend to get the information from by sending fake emails from certain links. This is called as phishing. राइट सो फिशिंग में फेक ईमेल्स का इस्तेमाल होता है, जहां पर इन ईमेल्स के थ्रू the hacker or the जो malicious intent है that tries to get the data out of your system, right? Then we have got another important attack such as man in the middle attack. Man in the middle attack, and it is also known as eavesdropping attack. अब जैसा कि इसका नाम ही बता रहे हैं, मैन इन द मिडल अटैक, यानी कि सम थर्ड पर्सन ट्राइज टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन, यानी कि एक एंड और दूसरे एंड के बीच में द थर्ड पर्सन ट्राइज टू इंसर्ट, ट्राइज टू एंटर बिटवीन द टू पार्टी ट्रांजैक्शन, एंड बाय एंटरिंग इनटू द ट्रांजैक्शन द डाटा कैन बी लीक्ड आउट ऑफ द सिस्टम्स. अब जनरली ऐसे मैन इन द मिडल अटैक वहां पॉसिबल होता है जहां पे इनसिक्योर पब्लिक वाईफाई यूज किए जाएं, राइट, या जहां पर सिस्टम में ऑलरेडी कोई मैलवेयर ब्रीच हो गया है. आफ्टर द मैलवेयर ब्रीच there is man in the middle attack, right? So basically in between a transaction between two people, a third person enters, जो कि obviously hacker है, and it tries to steal the data from the system, right? So third type of attack is man in the middle attack, also called as eavesdropping attack. Then we have got the fourth important attack, that is denial of services attack, और जनरली इसे डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक भी कहा जाता है. डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, अगेन इसके नाम से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है. डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी कि आप अपने सिस्टम पर काम कर रहे हैं, आप कुछ सर्विस लेना चाहते हैं बट आप उस सर्विस को नहीं ले पा रहे. सो द सर्विस हैज बीन डिनाइड. क्योंकि जानबूझकर डेलिबरेटली फ्लड कर दिया गया है सिस्टम को, सर्वर को, बाय अनदर डाटा. बहुत सारा डाटा, बहुत सारे मेल्स या ऐसा कुछ फ्लडिंग कर दी गई है उस सिस्टम पर ताकि आप इंपॉर्टेंट सर्विसेज को ले नहीं सकते. सो देयर इज डिनायल ऑफ सर्विसेज, राइट. या तो एग्जॉस्ट कर दिया है उस पूरे सिस्टम को, बैंडविड्थ एग्जॉस्ट हो गई है. सो जो आप काम करना चाह रहे हैं अपने सिस्टम पर वो सर्विसेज नहीं मिल पाएंगी. दिस इज कॉल्ड एज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक. और कई बार इसके इन डिनायल ऑफ सर्विसेज के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, राइट. सो देन इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, राइट. सो व्हेन मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज्ड डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर द डिनायल ऑफ सर्विसेज, इट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज अटैक, राइट. सो चार इंपॉर्टेंट मैं फिर से रिपीट कर रही हूं. मैलवेयर, दैट इज malicious सॉफ्टवेयर. फिशिंग वाया फेक ईमेल्स. देन मैन इन द मिडल अटैक which might be done due to insecure public Wi-Fi's, or once there is a malware breach, then also there can be man in the middle attack. The fourth one I discussed is denial of services attack, where the services are denied because of the abrupt flooding of the server with another data, and as a result the system becomes inoperable. इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट अटैक है, दैट इज SQL इंजेक्शन. सो द फिफ्थ इज SQL इंजेक्शन. सो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज्ड बाय सर्टेन सर्वर्स, वहां पर मैलिशियस कोड इंजेक्ट कर दिया जाता है
ठीक है जी। अब मेलिशियस कोड जब इस लैंग्वेज में, इस एसक्यूएल सर्वर जो सर्वर एसक्यूएल लैंग्वेज को यूज कर रहा है उसमें मेलिशियस कोड इंसर्ट कर दिया गया है, तो अदरवाइज जो एक बहुत सिक्योर्ड नेटवर्क था, सिक्योर एरिया था, वहां पर अब क्या है, ये कोड डालने से, मेलिशियस कोड डालने से जो इंफॉर्मेशन हिडन है वो भी हैकर तक पहुंच जाएगी। सो एसक्यूएल इंजेक्शन, बेसिकली द अटैकर इंसर्ट्स द मेलिशियस कोड इनटू द सर्वर दैट यूजेस SQL, and otherwise जो information reveal नहीं होती, concealed है, that ultimately gets revealed to the hacker. So these are the different types of cyber threats that are being witnessed by the world today, right? Then we have got the third part of this very question: explain India's attempts to tackle these issues. India में क्या attempt, India किन चीज़ों से इन cyber attacks को tackle करने में possible है? So सबसे पहले हम यहाँ जिक्र करेंगे IT Act 2000 की, right? So India is attempting to tackle these issues by डिफरेंट एक्ट्स एंड डिफरेंट केंद्रास एस्टैब्लिश। तो क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इज IT Act 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सो बेसिकली इस एक्ट का मकसद है टू रेगुलेट द यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स, राइट। इट ट्राइज टू एनलिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स, डिफरेंट कैटेगरीज बना दी हैं अंडर द साइबर क्राइम्स, जहां पर साइबर टेररिज्म है, या यहाँ पर टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम है, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम है, और चीटिंग एनीवन यूजिंग द कंप्यूटर। सो डिफरेंट कैटेगरीज बना दी गई हैं ताकि एक सेफ सिक्योर जो है कंप्यूटर कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए। So it regulates the use of computer systems and under the different categories जिस तरह का अटैक वो है, as per the laws जो है different punishments हैं, right? So IT Act 2000 makes sure it regulates the use of computer system and networks. It categorizes the different types of cyber attacks or the cyber crimes. Right? Then we have got Cyber Swachhta Kendra established in 2017 साइबर स्वच्छता केंद्र। अब ये एक ऐसा केंद्र है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर आप अपने डिवाइसेस, अपने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, इन्हें वायरस फ्री या मैलवेयर फ्री करा सकते हैं। सो वायरसेस एंड डिफरेंट वर्म्स, मैलवेयर जो है वो रिमूव कराया जा सकता है एट साइबर स्वच्छता केंद्र एस्टैब्लिश्ड इन 2017। देन वी हैव गॉट अनदर इंपॉर्टेंट नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, राइट। वी हैव नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन अगेन 2017। अब नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करता है? सो बेसिकली ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट स्कैन्स द इंटरनेट ट्रैफिक, जितनी भी इंटरनेट कम्युनिकेशन हो रही है उसे स्कैन करता है। इट टेक्स एन इनसाइट इनटू व्हाटएवर मेटा डाटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू इंडिया, राइट। कितना इंडिया में मेटा डाटा आ रहा है उसे स्कैन करना और रियल टाइम में डिटेक्ट करना किसी भी साइबर अटैक को, दैट इज डन बाय द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर एस्टैब्लिश्ड इन 2017, राइट। सो सिंस इट इज अ कोऑर्डिनेशन सेंटर, अगेन you should remember coordination center which scans the various internet traffic and the metadata that is coming into India, and जो real time cyber threats है उन्हें scan किया जा सकता है। Then there is Cyber Surakshit Bharat Initiative 2018, right? Then there is Cyber Surakshit Bharat Initiative established in 2018, given in 2018। अब साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव में क्या किया जाता है? अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है ताकि लोगों को साइबर क्राइम्स, साइबर थ्रेट्स के बारे में पता चले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कैपेसिटी जो है टू फाइट दीज साइबर थ्रेट्स बढ़ाई गई है बाय एम्प्लॉइंग सर्टेन चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स एंड फ्रंटलाइनर IT स्टाफ इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव 2018, it basically
spreads awareness about cybercrime and helps in increasing our strengthening our system, our government institutions by employing certain frontline IT staff and chief information security officer, ताकि हम लोगों को अवेयर करा सकें against the cyber threats. Then we have again another very important CERT, that is Computer Emergency Response Team India. Since it is emergency response team, so basically it is a platform. So यहाँ पे grievance and redressal है, जितने भी cyber attacks हैं उन्हें उस crisis को manage करना, उन्हें ग्रीवेंस प्रोवाइड करना, रिड्रेसल फॉर द डिफरेंट, जैसे ही कोई कंप्लेंट आ रही है साइबर अटैक की या साइबर थ्रेट की, सो दे इमीडिएटली वर्क ऑन दैट. द सर्ट, दैट इज कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. प्लीज रिमेंबर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, बेसिकली इट वर्क्स एज अ नोडल एजेंसी which helps in coordinating the different types of cyber attacks and helps in providing cyber security, crisis management में help करती है और immediately emergency response team की तरह act करेगी. So remember, computer emergency response team. Then again we have got National Cyber Policy 2013 which helps in creating secure cyber ecosystem. So बहुत सारी initiatives हैं जहां इंडिया जो है attempt कर रहा है to tackle all these various issues of cyber crime and cyber attacks, right? So carefully structure करेंगे हम इस questions को. We'll deal with all the three parts separately and please try to give legitimate points regarding the different three parts asked in this very question. So a model answer has been given to you, just go through it once. Right. Now I'll move to the second question. The second question that we will be discussing today is, discuss the major objectives of Mission Gaganyaan. All of us are well aware about Mission Gaganyaan, India's maiden human space flight program. So basically ये space flight program जो है वो launch किया जाना था January 2022 में, but owing to COVID delay, coronavirus pandemic, this has been delayed and now it might be like this program would be launched in December 2022 or early 2023. So basically Gaganyaan mission है क्या? India's maiden human space flight program, जहां पर India wants to strengthen itself and wants to prove itself globally that it is a very important country, an excelling country as far as this human space flight program is concerned. So after this Gaganyaan program, India would become the fourth nation to do so, to have a human space flight program, to send humans to space, right? So Gaganyaan mission, as I told, it was expected in January 2022, but now this has been delayed owing to coronavirus. और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे इस गगनयान मिशन की कुछ खास बातें, राइट? गगनयान मिशन में जब हम डिस्कस करेंगे, we'll discuss about that this mission would have 2 unmanned flights, right? And then there would be 1 manned flight. Along with this हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे व्योमित्रा को, right? So व्योमित्रा, the humanoid that would be accompanying the 4 astronauts, and the 4 astronauts are currently like they had taken training in Russia, Roscosmos mein, right? So Vyomitra, a humanoid which can speak in Hindi and English and would be able to provide emergency services and would be able to respond to certain situations. Vyomitra, a humanoid accompanying the astronauts, right? Developed by ISRO. सो व्योमित्रा को डिस्कस करेंगे. 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स हैं एंड देन 1 मैन्ड फ्लाइट, राइट? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गगनयान मिशन के बारे में देने के बाद हम क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट हिस्से पे आएंगे, दैट इज डिस्कस द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिशन गगनयान. सो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की. सो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट एंड प्रूव इट सेल्फ ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स, राइट? सो मेकिंग इंडिया सेल्फ रिलायंट and developing its prestige at international level, right? So जैसा मैंने कहा, अगर ये गगनयान मिशन सक्सेसफुल होता है and then we'll become the 4th nation to have a human space flight program, right? So prestige issue यहाँ पर involved है, and most important with this Gaganyaan mission will be performing some physical and as well as biological experiments in the space with the help of Vyomitra as well. So Vyomitra will
resist in those experiments. So the main objective here is establishing India on the forefront when it comes to space flight program, and at the same time with this objective in mind, यहाँ पर और सारे associated benefits भी हैं. सबसे पहला benefit क्या होगा? It would help us in developing science and technology in terms of space programs, right? So there is development of science and technology. इसी मिशन के साथ हमारी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी बढ़ी है, राइट? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद डिफरेंट नेशंस, जहां पर हमने फ्रांस से कुछ खास जो है नो हाउ लिया है, कुछ कैमराज इन बैग्स लिए. तो फ्रांस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दिस मैन्ड मिशन, इन दिस इंडियाज ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, राइट? इसके अलावा एज आई टोल्ड 4 एस्ट्रोनॉट्स हैड गॉट ट्रेनिंग इन रशिया. इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया वुड बी कीपिंग अ ट्रैक ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन थ्रू हिज कोकोज कीलिंग आइलैंड. सो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंटरनेशनल फोर फ्रंट पे हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं इंडिया को थ्रू दिस मिशन. इंडिया 4th नेशन बन जाएगा. साथ ही साथ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, देन इट वुड ऑब्वियसली इंस्पायर आवर यूथ, राइट? सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर इंस्पायरिंग द youth to participate, to contribute more in the space programs. So it will inspire the youth to participate, right? साथ ही साथ with these missions there would be a great spur in the employment opportunities, right? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, यूथ जो है वो और अच्छे से काम करेगा, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग हो जाएगी. बहुत सारे इंडिजिनसली डेवलप्ड जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं, राइट? सो एंड एट द सेम टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाना, राइट? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाना, यूथ को इंस्पिरेशन मिलती है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है, जब हम इंडिया को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि वी द इंडियंस आर केपेबल, आर सेल्फ रिलायंट इन परफॉर्मिंग इवन इन डूइंग दोज वर्क्स विच ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज यूज टू डू, राइट? सो जो डेवलप्ड कंट्रीज कर सकते हैं वो इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री भी कर सकता है. सो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स और उन्हें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द गगनयान मिशन. Right, now I'll move to the next important question. The third question that we'll discuss today is what are nanopharmaceuticals? So सबसे पहले एक सिंपल सी बात पूछी गई है, what are nanopharmaceuticals? Discuss their key features. उनके basic key features discuss करने हैं and elucidate on the role played by them. क्या रोल प्ले करेंगे these nanopharmaceuticals in extending the economic life of proprietary drug? कैसे इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ड्रग्स जो है वो बढ़ाई जा सकेगी यूजिंग नैनो फार्मास्यूटिकल्स. सो सबसे पहले अगर हम नैनो फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, सो नैनो फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली द यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन द हेल्थ केयर सेक्टर, राइट? जब हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज के साथ नैनो टेक्नोलॉजी को जोड़ देते हैं तब हमें एक न्यू नोवल इनोवेशन मिलती है, दैट इज नैनो फार्मास्यूटिकल्स. सो नैनो फार्मास्यूटिकल्स इज बेसिकली अ न्यू क्लास ऑफ थेरेपेटिक नैनो मटेरियल्स विच ऑफर्स यूनिक नैनो प्रॉपर्टीज. क्योंकि नैनो स्केल पर हम कह रहे हैं, एज आई ऑलरेडी डिस्कस, नैनो स्केल पे द प्रॉपर्टीज आर ऑल टुगेदर डिफरेंट. सो बेसिकली इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी to the health sector to get a new class of therapeutic drugs, therapeutic nanomaterials that offer much more unique nano properties. So nanopharmaceuticals basically they are novel formulations, new formulations of the already existing specific active agents. ऐसे agents जो हम already medicines में use कर रहे हैं, drugs में use कर रहे हैं, but there is a new formulation, novel formulation of these particular active agents. क्योंकि अब ये डिफरेंट नैनो प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर रहे हैं. सो दे आर नोवल फॉर्मुलेशंस ऑफ एक्टिव एजेंट्स ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स विच आर बेसिकली insoluble and could not be targeted to the specific sites. So ऐसे ड्रग्स जिन्हें हम owing to certain properties
टारगेट साइट पर टारगेट नहीं कर पा रहे, अब through the use of nanotechnology, through the formulation of nanopharmaceuticals, these drugs can be processed and can be used to work on the target sites. So a brief introduction about nanopharmaceuticals, then we'll discuss the basic features, right? बेसिक फीचर में सबसे पहली बात आप देखेंगे, बिकॉज ये नैनो पार्टिकल्स हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनका स्मॉल साइज। और जैसा मैंने कहा, दे हैव गॉट न्यू नैनो प्रॉपर्टीज, राइट? सो इनकी अलग नैनो प्रॉपर्टीज हैं, स्मॉल साइज है, नोवल नैनो प्रॉपर्टीज हैं, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर दे हैव हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, राइट, विच मेक्स देम ऑल द मोर इफेक्टिव। बहुत सारी हमारी हाइड्रोफोबिक ड्रग्स जो है वो बायोमेम्ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। सो व्हेन वी आर वर्किंग विद नैनो पार्टिकल्स, दीज नैनो फार्मास्यूटिकल्स दैट दे कैन क्रॉस द बायोमेम्ब्रेन्स एंड कैन वर्क ऑन द टारगेट साइट्स, राइट? सो हाई वॉल्यूम टू सरफेस रेशियो, these are the basic features। और अगले इंपॉर्टेंट फीचर में है, दे आर स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर इंट्रासेलुलर डिलीवरीज, जहां पे ये सेल के अंदर जाकर काम कर सकती हैं। सो दे कैन वर्क एट इंट्रासेलुलर लेवल, और इंट्रासेलुलर डिलीवरीज में, ड्रग डिलीवरी में काम कर सकते हैं। Apart from that, there are other features also. These can be modulated, यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज को मॉड्यूलेट किया जा सकता है ताकि ये और ज्यादा पेशेंट कंप्लायंट बन जाएं, राइट? सो दे कैन बी मॉड्यूलेटेड, राइट? जहां पे हम लाइपोसोम्स की बात करते हैं, अमीनो ग्रुप्स जो हैं वो अटैच किए जा सकते हैं, डीएनए अमीनो ग्रुप्स अटैच किए जा सकते हैं। लिपिड्स में हम सिर्फ ड्रग्स को नहीं, जीन्स की डिलीवरी भी करा सकते हैं, राइट? सो दे कैन बी मॉड्यूलेटेड एंड दस दे आर मोर पेशेंट कंप्लायंट। देन बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एक्सटेंडिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग। वो कैसे? सो हम थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इनका छोटा साइज है, ये फीचर्स हैं जो हमने ऊपर डिस्कस कर दिए, तो उनकी वजह से यहां पर होती है रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी एंड द यूज ऑफ रिड्यूस्ड डोजेस, राइट? अब रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी जो है दैट इंक्रीजेस द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ ड्रग्स। रिड्यूस्ड टॉक्सिसिटी है, साथ ही साथ यहां पर जो है डोजेज जो है वो स्मॉल अमाउंट में चाहिए, क्योंकि इंटरसेलुलर लेवल पर जाकर काम करेगी तो रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ डोजेज चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, इट कैन इंक्रीज द ड्रग्स हाफ लाइफ बाय रिड्यूसिंग द इम्यूनोजेनेसिटी, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग्स, तो किसी भी ड्रग की हाफ लाइफ को क्या कर सकती है? इंक्रीज कर सकती है। सो इट कैन इंक्रीज हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, यानी कि कोई ड्रग अगर थोड़ी देर के लिए काम करनी थी, उसकी हाफ लाइफ थोड़ी थी, तो उस हाफ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। और ये हाफ लाइफ कैसे बढ़ाई जा सकती है? बिकॉज इट कैन रिड्यूस द इम्यूनोजेनेसिटी, जो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है टू दीज नैनो फार्मास्यूटिकल्स, दैट इज लेस। सो बाय रिड्यूसिंग द इम्यूनोजेनेसिटी दे इंक्रीज द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग एंड दस it diminishes the drug metabolism। थर्ड पॉइंट जो आप लिखेंगे, टू इंक्रीज द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ प्रोप्राइटरी ड्रग, it can diminish the drugs
ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि जहां जिस ड्रग ने जितनी देर के लिए एक्टिव रहना था, अपना काम करना था, ये उस ड्रग ने, नैनो फार्मास्यूटिकल्स जो हैं, दीज कैन डिमिनिश द ड्रग मेटाबॉलिज्म, देन दस डायरेक्टली रिलेटेड है ऊपर वाले पॉइंट से, इट इंक्रीजेस द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग एंड दस हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग बेटर रिस्पॉन्स, बेटर प्रोटेक्शन टू द इंडिविजुअल, और टारगेट साइट पर कम डोजेज में, कम टॉक्सिसिटी में ये हेल्प कर सकती है। सो 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं इस क्वेश्चंस के, नैनो फार्मास्यूटिकल्स की ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन द की फीचर्स आप डिस्कस करने के बाद यू विल डायरेक्टली लिंक दोज की फीचर्स टू द रोल प्लेड बाय दीज नैनो फार्मास्यूटिकल्स इन एक्सटेंडिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ प्रोप्राइटरी ड्रग्स। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट प्रोप्राइटरी ड्रग्स हैं, उनकी लाइफ को जो है, उनकी हाफ लाइफ को एनहांस कर देगा, क्योंकि इम्यूनोजेनिसिटी को रिड्यूस कर रहा है। सो वंस रिड्यूसिंग द इम्यूनोजेनिसिटी दे कैन डिमिनिश द ड्रग मेटाबॉलिज्म को डिमिनिश करेंगे, सो दे कैन वर्क फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एट द टारगेट साइट, thus increasing the economic life of drugs. So now we move on to next question. So the next question that we have is, what is clean coal technology? Do you agree that clean coal is the next silver bullet for India's carbon emission reduction after solar energy? अभी हम जब बात कर रहे हैं एनवायरनमेंट की, हम चाहते हैं कि कार्बन एमिशंस इंडिया रिड्यूस कर दे, राइट? अगर मैं मोटे तौर पे बात करूं, एनवायरमेंटलिस्ट की सुने तो कोल एक तरह का विलन है, राइट, बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, और सही भी है, बट ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट भी है, कोल जरूरी भी है यूज करना, बिकॉज 41% ऑफ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम दीज कोल फायर्ड प्लांट्स, राइट, जहां पर पावर प्लांट्स में कोल यूज होता है, बट एट द सेम टाइम 46% ऑफ द पॉल्यूशन ग्लोबली ऑल्सो कम्स फ्रॉम दिस कार्बन एमिशंस बाय यूजिंग कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, राइट। सो जब हम कोल यूज कर रहे हैं, कोल जरूरी भी है, बट इट इज ऑब्वियसली अफेक्टिंग आवर एनवायरमेंट, एंड हमारे जहां पर इंडिया में जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है, दे आर वन ऑफ द मोस्ट polluting power plants. So what do we actually need to do? So power sector is right now focusing on reducing the carbon emissions. So यहाँ पर हम बात करते हैं about clean coal technology, using coal but using it by clean coal technology. So what is basically clean coal technology? Clean coal technology में हम कोल यूज कर रहे हैं, but we are reducing the carbon emissions. अब ये कैसे किया जाएगा? This can be done by using HELE technology, that is HELE technology. That is high efficiency लो एमिशन टेक्नोलॉजी। अब हाई एफिशिएंसी एंड लो एमिशन टेक्नोलॉजी में हम कोल को यूज करेंगे, बट बाय डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो हैं वो हैं, फर्स्ट इज सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, देन वी हैव गॉट अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, and then the third we have is IGCC. Now what is IGCC? Integrated Gasification Combined Cycle. Integrated Gasification Combined Cycle Technology. अब थोड़ा सा इन टेक्नोलॉजीज के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज सुपर क्रिटिकल एंड अल्ट्रा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। अब इन टेक्नोलॉजीज में क्या किया जाता है? कोल लिया जाता है, बट कोल इज यूज्ड अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स। सो कोल used under high pressure and high temperature will result in the formation of energy which is much less polluting, much less carbon emissions, right? Right? Likewise, अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड गैसिफिकेशन कंबाइंड साइकिल में, तो यहां पर क्या किया जाता है? अगेन हाई प्रेशर इज यूज्ड व्हिच कन्वर्ट्स द कोल इनटू syngas, right? High pressure is used so that coal is converted into a compressed gas, a highly pressurized gas called as syngas.
So basically this syngas is a mixture of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen, which is again cleaned and run through the turbine to release electricity, to produce electricity, right? So basically फंडा clean gas, clean coal technology का है, coal use किया जा रहा है but with lesser of carbon emissions, जहाँ पर coal को under high temperature and high pressure compress करके electricity produce की जा रही है. और अगर हम gasification की बात करें, integrated gasification technology की, तो वहाँ पर coal under high pressure is converted into syngas. Syngas, which is a combination of carbon monoxide, carbon dioxide and hydrogen, which is then made clean and then used to run turbine to produce electricity, right? So likewise, by using this clean coal technology, we can say that clean coal is the next bullet for India's carbon emission reduction when it is compared to solar energy, right? So likewise, अगर हम इसके साथ और चीजें ऐड करेंगे, advantages में ऐड करेंगे, तो environmentalists now are concerned about the reduced carbon emissions, precipitators use करके, nitrogen oxide use करके इस एनर्जी को, कोल द्वारा पाई गई एनर्जी को कम किया जा रहा है. सो कोल गैस क्लीन कोल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स HELE टेक्नोलॉजी, दैट इज हाई एफिशिएंसी लो एमिशन टेक्नोलॉजी. तो तीनों टेक्नोलॉजीज को हम लाइकवाइज डिस्कस करेंगे. Right? Now we move to the fifth question, that is, when used sensibly, big data can save lives and help build better future citizens. Explain with suitable illustrations. So when used sensibly, big data. So what is basically big data? As the name suggests, a data which is too large. It is such a large accumulation of data so that that is not able to be adequately catered upon by the already available softwares. जो softwares आज हमारे पास हैं वो इतने बड़े डाटा के साथ डील करने के लिए पॉसिबल नहीं है. So big data is basically a combination of large amount of data. And basically इसके पीछे 3 V's काम करते हैं. The 3 V's behind the big data, which include the volume, variety and velocity. So 3 V's. What do I mean by these 3 V's? Volume, variety and velocity. इतना ज़्यादा डाटा इतने थोड़े टाइम में अवेलेबल है और वैरायटी ऑफ डाटा बहुत ज़्यादा है. सो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज वॉल्यूम, द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, द immense variety of data, be it the banks data, population data, different government institutions का data, हमारे normal photographs, हमारे bank accounts, सारा data, इतना variety of data, and then the velocity. This data is coming at a greater speed. अब internet users ज़्यादा हैं, data बहुत ज़्यादा accumulate हुआ है. Within the past 2 years, 90% of data जो है हमारा hike कर गया. So this is big data. अब big data में हम करना क्या चाहते हैं? We want to critically analyze the different data available so that we can use it. जहां पर ये next part of the question is big data can save lives. Lives बचाने में help करे and help build better future citizens. That means we want to use this data, this information in having healthy lives and better future citizens. That means big data को हम analyze करके different sectors में use करना चाहते हैं. Be it the government organizations, वो इसे scrutinize करें and thus provide good governance. Right? So हमारे पास हम different headings के अंदर इसे discuss करेंगे जहाँ पर big data help करेगा to improve lives, better future citizens and better health of the individuals, right? So first point हम जो यहाँ discuss करेंगे that is good governance. अब बहुत ही सिंपल बात है गुड गवर्नेंस समझने के लिए. सपोज अगर किसी भी हम किसी भी एस्पेक्ट में बात करें गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट हमें बेटर पॉलिसीज दे, राइट, पॉलिसीज दे रिगार्डिंग आवर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, रिगार्डिंग हाउसिंग फैसिलिटीज. सो इफ वी क्रिटिकली एनालाइज द डेटा, द बिग डेटा, देन वी आर एबल टू प्रोवाइड, द गवर्नमेंट इज एबल टू प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज, बेटर पॉलिसीज फ्रेम कर पाएगी विच विल cater to the needs of the common people, right? So good governance is possible when we use this big data sensibly, right? Then I talk about to save lives. That means we can use this big data in the health sector also, in improving the health facilities in India.
सपोज अगर एक जगह का डेटा है मेरे पास, मुझे मालूम है कि ये स्पेसिफिक एरिया है, इस रीजन में है, यहाँ पर लोगों में ये वाली प्रॉब्लम, हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा आ रहा है, राइट, और इस तरह की डिफिकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं व्हेन दे वांट हेल्थ केयर फैसिलिटीज. सो व्हाट कैन गवर्नमेंट डू, व्हाट कैन आवर गवर्नमेंट डू इज इट कैन अकॉर्डिंगली प्लान डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अगर बनाने हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पर किसी हेल्थ फैसिलिटी के लिए, वो बनाया जा सकता है. सो हेल्थ केयर इंप्रूव करने के लिए किस तरह की प्रॉब्लम जो एक रिपीटेड एरिया में आ रही है, सो इन्हीं चीज़ों का डेटा एनालाइज करने से हेल्थ फैसिलिटीज़ बेटर की जा सकती हैं. लाइकवाइज अगर हम हेल्थ के बाद बात करें, एग्रीकल्चर, राइट, एग्रीकल्चर और लैंड के इशू को अगर हम करना चाहें तो वहाँ पर भी हम बिग डेटा को क्रिटिकली एनालाइज करके यूज़ किया जा सकता है. किस जगह पर किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, कैसी लैंड है वहाँ पर, कौन सी क्रॉप्स होनी चाहिए, कैसे हम वहाँ की इरीगेशन फैसिलिटीज़ इंप्रूव कर सकते हैं. सो एग्रीकल्चर एंड लैंड, दिस कैन ऑल्सो हेल्प build better future citizens, right? सो एग्रीकल्चर एंड लैंड में भी हम बिग डेटा. सो अगर हम इन शॉर्ट बात करें बिग डेटा के बारे में, सो एनालाइजिंग द डिफरेंट वैरायटी ऑफ द डेटा टू क्रिटिकली प्रोवाइड द सर्विसेज, गवर्नेंस जो है वो इम्प्रूव की जा सके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जा सके, एंड साइड वाइज इकोनॉमी भी बूस्ट की जा सके. इकोनॉमी बूस्ट कैसे की जाएगी, अगर हम बैंक्स का डेटा है हमारे पास तो ईजिली जो हमारे जो लोग टैक्स इवेडर्स हैं दे कैन बी ईजिली कॉट. हमारे डिफरेंट जो पॉलिसीज़ फ्रेम करनी हैं वो फ्रेम की जा सकती हैं. सो इकोनॉमी इंप्रूव करने में एग्रीकल्चरल लैंड एस्पेक्ट देखें, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देखें, ओवरऑल फॉर अ गुड गवर्नेंस, फॉर बेटर हेल्थ लाइव्स, इफ बिग डेटा इज यूज्ड इट कैन ऑब्वियसली इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन्स, राइट. बट साइड बाय साइड हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे दैट अलॉन्ग लॉट मेनी थिंग्स हैव टू बी डन. हम बिग डेटा की बात कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक केयर. एथिकल रीजंस हैं यहाँ पर जहाँ पर डेटा प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द लाइट ऑफ द साइबर क्राइम और द साइबर अटैक. सो सेफ गार्डिंग द डेटा इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट. और इतने बड़े डेटा को संभालने के लिए वी नीड डेटा सेंटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर चाहिए, बेटर हैंडलिंग ऑफ द डेटा चाहिए. सो ऑल दीज चैलेंजेस नीड टू बी ओवरकम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बिग data and improving the health and life of the citizens using big data, right? So that's all for today's session of mains questions. I'll see you again. Until then, bye.